Winning is great, sure, but if you are really going to do something in life, the secret is learning how to lose. Nobody goes undefeated all the time. If you can pick up after a crushing defeat and go on to win again, you are going to be champion someday. We have champions who presented their talent in front of such a big audience. Let us have a big round of applause for all the participants in all categories. डीपीएस के विद्यार्थी विद्या अध्ययन में अव्वल तो हैं ही, साथ ही साथ विद्यालय के हर गतिविधियों व विद्याओं में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया है, विद्यालय का गौरव व पहचान बनाया है तथा अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर अपने कदम को अग्रसर किया है और अग्रसर करते रहेंगे. This is the time we acknowledge the talent of our position holders. The position holders who have been struggling and facing many challenges and difficulties to be pioneer. In fact, it is all because of their own perseverance, consistency and immovability that they are the champion. To facilitate the prize of position holders, I'd like to invite our esteemed chief guest, Mr. Sanjay Kumar Singh sir, Director sir, Mr. Dheeraj Agrawal sir, our academic advisor, Gurubaksh sir, and our special guest, Mr. Rustam Sarang sir, to come on the stage to distribute the awards of the position holders. Please give them a big hand. We'll start with Delhi Public School Dhamtri Kids Campus. English poem recitation, group 1 to 3rd, topic My Mother and Family. मौलिका साहू, Group 1 to 3rd, Hindi poem recitation. नीलांश दारो, Hindi storytelling competition, class 1A. विभुम नामदेव, Class 1B, अनय गोलछा, Class 2A, आरव राखेचा, Class 2B, अविका शर्मा, Class 3A, आर्या राठी, Class 3B, अथर्वरन सिंह, English paragraph writing and essay, class 2, topic My Favorite Festival. मनराज सिंह देवगन,
Class 3, topic Safe and Sound Diwali. विया घोलछा. Now we'll start the award distribution of Delhi Public School Dhamtri main campus. English poem recitation, group 4th to 5th, topic Family and Nature. वेदांत अग्रवाल, क्लास 5th. Please give a huge round of applause to all the young performers. Hindi poem recitation, group 1 to 3rd, topic My Teacher. प्रियांश अग्रवाल. क्लास 1. Group 4 to 5th, topic Time. आरना त्रिवेदी of class 5th. Now we request Mr. Rustam Sarang sir to give the young achievers the next set of award. English speech, group 6 to 8, topic Farmers of India. सानवी गुप्ता of class 8. Group 9 to 10th, topic Social Equality. ओजस वलुंकर of class 10. Hindi speech, group 6 to 8. आरुषि झावर class 8. ग्रुप 9 to 10th, टॉपिक शिक्षा द्वारा बनाई गई जागरूकता. खुशी गंगवीर क्लास 10. हिंदी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, क्लास 1A. कुशाग्र साहू. क्लास 2A. विहान पंजवानी. Please give a big hands for our young achievers. Class 2B. प्रणिशा तिवारी. क्लास 3A. ख्वाहिश ललवानी. Please, clapping should not stop for our young achievers.
Class 3B. Ayansh Goyal. Class 4th A. Aanchal Jain. Class 4th B. Samiksha Lunkar. तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए. Class 4th C. Aradhya Bangani. Class 5th A. Isha Mishra. Class 5th C. Arna Trivedi. Now we request our academic advisor, Mr. Gurubaksh Singh sir, to give our young achievers the next set of awards. English paragraph and essay writing competition, Class 2, topic My Favorite Festival. Vihan Panjwani of Class 2. Pranisha Tiwari of Class 2B. Class 3 and Class 4 paragraph writing competition, topic Safe and Sound Diwali. Kavyansh Patela of Class 3A. Advait Chandrakar of Class 2B. Aanchal Jain of Class 4A. Anay Rawat of Class 4B. Aradhya Sharma of Class 4C. Class 5 and 6 essay writing competition, topic Recycling should be compulsory. Karishma Sahu, Class 5A. Please, clapping should not be stopped for our young achievers. Molly Golcha of Class 5B. Samika Gupta of Class 5C. Vojasvi Sahu of Class 6A. Akshata Singhal of Class 6B. Class कृपया 7, ताली की कमी ना हो. Class 7th and 8th essay writing competition, topic Better Late Than Never. चोमेंद्र कुमार साहू, Class 7A.
Laksha Pachori of class 7B. Tejasvi Sahu of class 8A. Janvi Sahu of class 8B. Miss Astha Sakshi of class 10. She has made all of us proud by representing in Chhattisgarh in under 17 Junior Women's National Football Championship organized by All India Football Federation. Please give her a huge hand. Now, for felicitation ceremony, I'd like to hand over the stage to Viraj Doshi and Dimple Sinha. शिक्षकों को उनके छात्रों की उपलब्धियों से ही याद किया जाता है। द्रोणाचार्य जानता, यदि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए अपना अंगूठा नहीं काटा होता। Diamond, one of the rarest gems, gets valuable only when the artisans put their chisels on it to cut and shape it. A school and its faculty are the artisans who work hard day and night to create these beautiful diamonds. So, when such diamonds, that is, the students of the institute, achieve success and merit, the school feels encouraged and successful. We, Delhi Public School, Dhamtari, feel proud to present to you all the achievers of our school who, with their hard work and zeal, have achieved these merits. We request our chief guest, Shri Sanjay Kumar Singh, and other dignitaries to felicitate these achievers. खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। Firstly, we have the board toppers from the year 2019-20. Sanskriti Paikra, class 12, math stream. Please give her a big round of applause. Tejeshwar Sahu, district topper, biology stream. Khushi Chopra, class 12, commerce stream. Hariom Singhal, district topper, class 10th, with his mother, Mrs. Rupal Singhal. Please give them a huge round of applause. Now we have the board toppers from the year 2020-21. Sakshi Jaggi, class 12, math stream. She is not present here with us today. Her grandmother will take the award instead of her. A big round of applause for her. Manya Jain, class 12, commerce stream. Harshita Mittal, district topper, class 10th.
A big round of applause for her. Manya Jain, Class 12th, Commerce. Next, we have the board toppers from the year 2021-22. Ayush Sahu, District Topper, Math Stream. A huge round of applause. Pallavi Sahu, Class 12th, Biology Stream. Sneha Chopra, Class 12th, Commerce. A huge round of applause for these achievers. Next, we have the board top. Prachi Goyal, District Topper, Class 10th. Next, we have the NEET qualifiers. Angel Kurre in the year 2021. She is not present here with us today. Her parents will receive the award instead of her. Tejeshwar Sahu in the year 2022. Next, we have the JEE qualifiers. Sanskriti Pekra in the year 2020. Dhruv Datta in the year 2022. Next, we have the CUET qualifier. Rahul Sharma in the year 2022. A big round of applause for these achievers. Finally, we have Priyanshi Sahu, who was selected for Junior Miss India for Chhattisgarh from DPS Kids.
I request our chief guest, Mr. Sanjay Kumar Singh, to please stay with us on the stage. I request the other dignitaries to occupy their distinguished chairs. Respected Sri Dheeraj Agarwal, Chairman, DPS Dhamtari, Sri D.K. Datta, Principal, DPS, Managing Director, Gurubaksh Singh, all the teachers of this school, esteemed parents, and my dear students. First of all, I thank Mr. Dheeraj Agarwal to invite me on this grand occasion, on this 5th annual celebration of this school. The program which I have seen, really it is very meticulously planned and executed. The marching drill, which impressed a lot, the marching drill and the turnout of the student, that was par excellence. And it shows the painstaking efforts and the systematic approach of the teacher, because the students, they are the future of the country, they are the leaders, and DPS is having some place in the field of education. Everybody knows it. And which I was talking to Principal Mr. D.K. Datta, the program which I have seen, I have witnessed. If we see the video of all the programs, it is very difficult to differentiate that whether the students of DPS are performing or the professionals, and the trained performance of some particular school, they are performing. That was really excellent, outstanding, and I have all the applause for them, because this is the annual function and I have seen lot of achievers. I think all the achievers of Dhamtari district, they are from this school only, in the field of NEET, also in the field of IIT and NIT, and some they are studying in DU also. This tells the performance of this school, the performance of the teachers, the pain and concern taken by the parents also, because without pain, without hard work, we can't get it. It is very difficult. Without any tapasya, without any त्याग, जो हम बताते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, बड़ी मुश्किल से याद कराया जाता था हम लोगों को भी. एंड I want to appeal to the students that without proper discipline and hard work, nothing can be achieved. मुझे ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है, स्टूडेंट्स कहाँ पर बैठे हुए हैं.
मैं आप सभी को ये जरूर बताना चाहूँगा कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको एक मापदंड के रूप में लेकर चलना पड़ेगा, एंड वह है हमारा अनुशासन एंड परिश्रम। इस दो के साथ आप किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं, एंड जो भी टारगेट आप रखेंगे उसे जरूर मिलेगा। और ये दो चीज़ ऐसा है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ये जो लैंड है भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। मैं भी जब यहाँ आया तो मैं धमतरी के बगल में जहाँ पर कौशल्या माता का घर है, रायपुर से नज़दीक में, तो मैं गया तो पता चला कि राम जी का ननिहाल भी यहीं था। और आप सभी जानते हैं वो दर्शनीय स्थल है यहाँ का। और बताते हैं कि रामचरितमानस में और रामायण में भी ये उल्लिखित है कि जीवन में आदमी के कॉन्फिडेंस जरूर होने चाहिए। अगर आप में हुनर है, आप में शक्ति है, आप में क्षमता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जरूर हाई रहेगा। और उसमें एक प्रसंग है कि जब भगवान राम जाते हैं वन में और सीता का हरण हो जाता है, और जब पहुंचते हैं वो जटायु के पास, जो बताते हैं कि माता सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया और इसी रास्ते से ले जाई गई हैं वो, तो सुग्रीव घायल हो चुके थे और प्राण का उत्सर्ग कर रहे थे। और राम से उन्होंने कहा कि मैं अब स्वर्ग में जा रहा हूँ और वहाँ जाऊँगा तो आपके पिताजी जब राजा दशरथ मिलेंगे तो मैं क्या बोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं बताएंगे, मैं जा रहा हूँ लंका, और मैं उस रावण का जिसने 7 बार देवासुर संग्राम में देवताओं को हराया था, उसका समूल विनाश करके वंश सहित नष्ट कर और लंका पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। और रावण जब जाएगा ऊपर स्वर्ग में तो वो खुद बताएगा मेरे पिताजी को कि राम ने क्या किया उसके साथ। दिस इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह कॉन्फिडेंस होती है। तो लाइफ में यू हैव टू बी फोकस्ड। आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा अगर कुछ आपको पाना है तो। और यह दो चीज़ है जो डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कहीं भी। आप इसको एक मूल मंत्र बनाकर चलें। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, खासकर बच्चों को, कि आपके अंदर दो चीज़ें हैं जो बड़ी द्वंद्व में चलती रहती है। एक तो मन है, दूसरी बुद्धि है। मन हमेशा विचरण करता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, पढ़ूं कभी खेलूं, कभी मन कहीं और जाता है। लेकिन सारी चीज़ आप नहीं कर सकते। कुछ समाज का बंधन है, कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ संविधान आपको परमिट नहीं करता, कुछ माता पिता भी परमिट नहीं करते। उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास बुद्धि है, जिसको इंटेलेक्ट बोलते हैं। आपका माइंड अगर विचलित हो, आप स्वयं से बात करें, अपने बुद्धि को जरूर यूटिलाइज करें और जरूर सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, विच इज़ राइट और विच इज़ रॉन्ग। यह चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्कूल में सिखाई नहीं जाती है, उसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जिस परिवार से आप आते हैं, इसलिए बताया जाता है कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ। आप घर से सीख कर आते हैं, रिस्पेक्ट कैसे देना है, बड़ों को कैसे देना है, छोटे को कैसे देना है। टीचर का जो रोल है वो समाज उस ऋण को वापस नहीं कर सकता। गुरु का जो ऋण है, गुरु बताते भी हैं कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से तुलना की गई है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो स्थान है बहुत बड़ा होता है। और एक चीज़ बच्चों ध्यान देना है आप, कि इस पूरे जीवन में आपके 3 ही आदमी ऐसे होंगे जो आपको अपने से भी बड़ा होना देखना चाहते हैं आपको, वह है माता पिता और गुरु।
गुरु हमेशा चाहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ जो स्टूडेंट्स हो वो नाम रोशन करे। इन चीज़ों को आप ध्यान देना। और गुरु का जो योगदान होता है बच्चों के चरित्र को संवारने में, शिक्षा देने में, उसका ऋण आप कभी चुका नहीं सकते। मैं भी आज तक नहीं चुका पाया। और मुझे याद है कि मुझे जब नौकरी हुई थी और मैं जा रहा था तो मेरे गुरुजी मिल गए। जब मिल गए तो मैं बताया तो खुशी से रोने लगे, आंख से आंसू आने लगी। यह गुरु का प्यार होता है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। और जीवन में आप ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसे आपके माता पिता और गुरु को दुख हो। ऐसा कोई कार्य ना करें। ये बड़ी सहज है सुनने में, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एसिमिलेट। इसको बड़े आप गौर से सुनना। ऐसा कोई आप कार्य ना करें जिससे आपके माता पिता और गुरु को दुख हो। और दूसरी चीज कि आपको एक लक्ष्य हमेशा अपने जीवन में बड़ा रखना पड़ेगा, जिस लक्ष्य की तरफ आप हमेशा फोकस्ड रहें। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक दो चीजें जो थी मैंने कहा आप सभी को। आपका जो परफॉर्मेंस, आपका जो बॉडी लैंग्वेज, आपका जो मेहनत, ये सारी चीज़ देखने के बाद आपकी रैंकिंग A++ तो मैं समझता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे पता भी नहीं, बट A++ तो जरूर दिया जा सकता है आप सभी को। एंड वंस अगेन I wish you all the very best for your future endeavors. I again thank to Sri Dheeraj Agarwal ji, Sri Dilip Datta ji for inviting me on this grand celebration of this DPSA school. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for your inspiring words. There are many among us who aspire to be successful in their endeavors and want to follow your footsteps. We now request our director, sir, to present a memento to our esteemed chief guest, Shri Sanjay Kumar Singh, sir. We now request our director, sir, to present a memento to us, our esteemed special guest, Mr. Rustam Sarang, sir. रुस्तम सर को स्पीच के I would like to invite our special guest, Mr. Rustam Sarang, sir, for his speech. A huge round of applause for him. सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस डीपीएस स्कूल के एनुअल फंक्शन में पधारे आज के चीफ गेस्ट DIG सर, रिस्पेक्टेड धीरज अग्रवाल सर, प्रिंसिपल सर एंड दूसरे हमारे अतिथि सर जो यहाँ मौजूद हैं, और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज इस एनुअल फंक्शन में अतिथि के रूप में इनवाइट किए। मैं सर ने मुझे अभी कहा कि मुझे स्पीच देना है, तो सबसे पहले तो मैं डर रहा था कि आप लोगों को स्पीच क्या दूं, कि पहले ही से यहाँ NIT क्वालिफाइड हैं, JEE क्वालिफाइड हैं। तो DIG सर ने मुझे मोटिवेट किया कि खिलाड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको हार के जीतने का।
बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, तो मैं कुछ बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहूँगा। कहीं भी जब भी मैं किसी भी मंच पे अतिथि के रूप में जाता हूँ तो मैं कभी भी स्पीच नहीं कहता, अपना अनुभव शेयर करता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है, इतने लंबा शेयर नहीं कर पाऊँगा। फिर भी 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि हम में से कई लोग जो हैं खिलाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। जैसे हमने मिल्खा सिंह जी के बारे में देखा, मैरी कॉम जी के बारे में देखा, साइना नेहवाल के बारे में देखा, पीवी सिंधु के बारे में देखा, और हम इन सभी को जानते हैं कि ये जो है देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हमारी देश की सेना हमारे देश की सेवा करते हैं, पुलिस अंदर समाज में सेवा करती है, वैसे ही स्पोर्ट्समैन का एक अलग रोल होता है। ये आउट ऑफ कंट्री जाके देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए शायद इनको एक अलग सा ड्रेस दिया जाता है जिसमें ट्रैक सूट होता है, उसमें दिल के करीब तिरंगा होता है, एक ब्लेजर होता है जिसमें दिल के करीब तिरंगा होता है, ताकि ये पूरे देश में अपने देश का एक खुले मंच पे प्रतिनिधित्व करे और पूरे सम्मान से सब लोग देख पाएं कि ये हिंदुस्तान के हैं, ये इंडिया के हैं। तो ये सौभाग्य खिलाड़ियों को मिलता है। और इससे भी ज़्यादा सौभाग्य की बात ये होती है कि जब हम किसी देश में, जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मीराबाई चानू जी ने मेडल जीता था, तो वहाँ पे जो हमारे देश का तिरंगा धीरे 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 ऊपर लहराते जा रहे थे, ऊपर 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 जा रहे थे, और हमारे देश का नेशनल एंथम बज रहा था, तो हमारे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सुन के। ये भी सौभाग्य हमारे खिलाड़ियों को मिलता है। पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर ये खिलाड़ी बनते कैसे हैं? कई संघर्ष करने के बाद, जैसे सर ने बोला, कई समर्पण, कई त्याग करने के बाद एक देश का खिलाड़ी अपने देश, अपने तिरंगे के लिए रिप्रेजेंट करता है और मेडल जीत के लाता है। ये भी एक संघर्ष है सर, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। और मेरा ये मानना है कि हम खेल को नहीं चुनते, सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें खेल चुनता है और वो कामयाब बनते हैं, मेरा ये मानना है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले दिनों मैं देख रहा था कि कई मीम्स बन रहे थे कि करोड़ों की आबादी के देश में एक 11 फुटबॉलर नहीं है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने हैं। आपने भी सुना होगा। ये कहना आसान है, लेकिन हमको समझना होगा कि हम हर क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, दूसरे अदर हॉबीज में, स्पोर्ट्स में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम। तो ये बताने का कारण ये है कि स्टडी तो एक समाज को उन्नत बनाने की नींव है, लेकिन साथ ही साथ आज हमारा देश बदल गया है, पूरा विश्व बदल गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने खेलो इंडिया जैसा एक मंच तैयार किया है, उसमें भी हम बदल सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए बदल सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ आप देश को खेलों में भी प्रतिनिधित्व करें, इससे भी हमारा सम्मान बढ़ता है और एक एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है समाज से लड़ने का, हर एक नेगेटिव सिचुएशन से लड़ने का। आपने हमेशा सुना होगा कि कई लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी से हार गए, थक गए, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन कभी किसी खिलाड़ी के बारे में आपने ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि खिलाड़ी ही हार के जीतना सीखते हैं। तो स्पोर्ट्स आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, ये मेरा आप लोगों से अपील है। और साथ ही साथ आखिरी बार ये कहूँगा, सब मेरा एक मोटो है, खुद कामयाब बनो और दूसरों की कामयाबी का कारण बनो। ये सोच मेरे अंदर कैसे आई थी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। थोड़ा और बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी, और उसके अलावा भी मैंने 11 इंटरनेशनल्स खेले हैं। और कई लोगों ने सुना होगा कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना बनाना भी होता है, तो वो एक बार मैंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है अपने छत्तीसगढ़ से खेल के, इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड। लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे? जब ईयर 2004 में मेरा पहली बार नेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ,
फिर इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। तो सर उन दिनों में स्पोर्ट्स का यहाँ पे उतना कल्चर नहीं होता था, एक नया नया स्टेट था, उतना कल्चर नहीं होता था। तो शायद मैं एक पहला ऐसा खिलाड़ी था जो किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता था। तो उस समय जो है इकोनॉमिकल कंडीशन भी हमारे ख़राब थे, थोड़े हेल्प चाहिए थे। तो मेरे फादर ने बहुत कोशिश की कि किसी से हम फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आ जाए, लेकिन कहीं भी हमको ऐसा किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। तो जब कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला तो हमको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला जाना था। कुछ 8-10 हज़ार रुपये का ज़रूरत था, ज़रूरी हमको चाहिए था, पैसे चाहिए था। तो मेरे फादर ने एक अंकल से जाके रिक्वेस्ट किया कि मेरा बेटा है और ये ऐसे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए जो है सिलेक्ट हुआ है, तो इसको एक कुछ सपोर्ट चाहिए। उन्होंने लिटरली पूछा आपको क्या सपोर्ट चाहिए। पापा ने सीधे बताया मेरे फादर ने कि इनको जो है थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, सीधा जो भी उनके हाथ में अमाउंट था उन्होंने उठाया, दिया मुझे और ब्लेसिंग्स दी कि बेटा जाओ और हमारे देश के लिए पदक जीत के आओ। तो मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि मेरे फादर किसी के सामने ऐसे स्पोर्ट्स में जाने के लिए ऐसे फंड इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने फादर से पूछा क्यों हम ऐसे फंड इकट्ठा कर रहे हैं और क्या ज़रूरत है हमको, क्या हम इतने सक्षम नहीं हैं। तब उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये सच्चाई है। तो मैंने पापा से पूछा ठीक है पापा, उन्होंने जो है हमें फाइनेंशियल सपोर्ट तो कर दिया, हम उनका पैसा कब लौटाएंगे। तो मेरे फादर ने मुझसे देखा, मुझे पकड़ा, मेरे गालों पे हाथ फेरा और बोले कि पैसा लौटाना बड़ी बात नहीं है बेटा। समाज के एक अच्छे व्यक्ति ने आके आज तुम्हारे इंटरनेशनल करियर को स्टार्ट करने के लिए एक मदद की, उसके बदले में तुम समाज को क्या दोगे। तब मैं 15 ईयर्स का था। फादर से मैंने पूछा कैसे, मैं क्या लौटा के दे सकता हूँ। उन्होंने बोला इंटरनेशनल खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और अपने देश के लिए मेडल जीतना है, यही तुम्हारे समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है। मैंने अपने फादर से कहा कि ठीक है पापा, मैं करूंगा और इंडिया के लिए मेडल लेके आऊंगा, मैं जरूर जीतूंगा, और उसके आगे और क्या करना होगा। तो उन्होंने फिर से एक बात कही कि जैसे ये व्यक्ति आज तुम्हारे मदद के लिए आगे आए हैं, वैसे ही कल कामयाब बनकर तुमको अपने से भी बेहतर कामयाब बनने के बाद कामयाब खिलाड़ी समाज को बना के देना है। तो ये सोच मेरे दिमाग में था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं कामयाब हूँ, मैं अच्छे पद पे हूँ और देखा जाए तो सेटल्ड हूँ, लेकिन मैंने अपना स्पोर्ट्स का करियर नहीं छोड़ा। अपना स्पोर्ट्स ख़त्म करने के बाद मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर चलाता हूँ वेट लिफ्टिंग का, जिसके सर के वो मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था। और सभी के आशीर्वाद से आज हमारा सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर वेट लिफ्टिंग सेंटर इतना बड़ा हो गया कि 75 स्टूडेंट्स वहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग करते हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है सर कि इंडियन नेवी में हमारे 3 वेट लिफ्टर्स स्पोर्ट्स कोटा से रिक्रूट हुए हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और लास्ट मंथ एक बच्चा इंडियन रेलवे से रिक्रूट हुआ है। तो ये सब बताने का कारण ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ या करूँगा, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स पे भी स्कोप है। जैसे आपने अच्छी शिक्षा के लिए DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल को चुना है, वैसे ही किसी भी स्पोर्ट्स में डालने से पहले ये देख लें कि अच्छी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में स्कोप नहीं है, लेकिन अच्छी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जाएंगे तभी आप जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मेरा यही मानना था और ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि स्पोर्ट्स को जो है आप सिर्फ रिक्रिएशनली ना देखें, इसको करियर बिल्डिंग पे भी लाएं और देश के लिए खेलें। स्पोर्ट्स वो चुनें जो देश और दुनिया के काम आए, और जैसे कि मैंने कहा पहले खुद कामयाब बने, दूसरों की कामयाबी का कारण बने। अगर आप में से कोई भी ऐसे स्पोर्ट्समैन के लिए हेल्प के लिए आगे आएंगे तो शायद मेरा ये सोच और आगे कामयाब हो जाएगा, ऐसा मैं आप सबसे अपील करता हूँ। और आखिरी ये है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपको और सारे बच्चों को। सबका परफॉर्मेंस मैंने देखा, अपने स्कूल के दिन याद आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज सर को धन्यवाद, DPS स्कूल को धन्यवाद, सभी पेरेंट्स को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for enlightening us. I request our principal, sir, to escort our chief guest, special guest, and other dignitaries back to their respective seats. We are privileged that we have such inspiring personalities with us today. We promise you all to work hard and follow your guidelines. I would like to hand over the mic to Harleen and Khushi.